Okay, today we'll do the areas of two similar triangles. Now, the fact is this according to the latest CBSE thing that you have sent me, lot of students, I have found that the proof of the theorem is proof of the theorem is taken away from the syllabus by CBSE, but it is not mentioned that sums applying to this concept is eliminated, so we have to do the sums. Now the fact is this, that if we are doing the sums, then what's the harm in doing the proof? Doing the proof is also a sum, right? So let's do it in a traditional way, because it is important to know the proof of a theorem. Now, areas of two similar triangles. The theorem states that the ratio of two similar triangles, the ratio of the area of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of two corresponding sides of any two corresponding sides. What actually this means is that the ratio of the ratio of the area of two similar triangles. Suppose already two similar triangles are given to you, or you have proved it previously that it is similar. Suppose these two triangles are similar to each other. Triangle ABC and triangle DEF are similar to each other. When triangle ABC and triangle DEF are similar to each other, so that means triangle ABC is similar to triangle DEF. This is your given part. Okay, they have said it. Now your to prove is the ratio of the area of the two triangles, that means area of triangle ABC by area of triangle DEF. The ratio of the areas of two triangles is equals to AB square by DE square is equals to BC square by EF square is equals to AC square by DF square. Means if these two are similar triangles, then square of this side, these two are corresponding sides, these two are corresponding sides, this and this are corresponding sides, and this are corresponding sides. So that means that you have the corresponding sides with you. So basically the fact is this, that the area of the two triangles, okay, area of triangle ABC, area of triangle DEF, okay, is equals to ratio of AB square by DE square. Means this square of the corresponding side, square of the corresponding side, square of the corresponding sides. So actually the ratio of the area of two similar triangle is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides, or any two corresponding sides. Okay, this by this, or this by this, or this by this in squared. Okay, so that is what is actually we will understand. Now, to just know the proof that how this result is accomplished, I'll just take these similar triangles only. And what I'll do is I'll draw a 90 degree and I'll draw a corresponding altitude 90 degree. And as far as I remember, whatever I'll explain here, this thing has already been done by you in the last class. It's just an extension of that. The fact is this,
that as because already triangle ABC is similar to triangle DEF already, so in triangle AB, let it be L, let it be M, ABL and DEM, angle B is equals to angle E because they are part of the or angle of the similar triangles, because ABC is already similar to DEF, so angle B is equals to angle E. So you can write down the reason here. And angle ALB is equals to angle DME because both are 90. So therefore triangle ABL is similar to triangle DEM, right? This triangle is similar to this triangle. Now what actually we'll get is in the next part, as because ABL and DEM, so AB by DE must be equals to AL by DM, right? Now keep this in your hand and let us move like this. Area of triangle ABC by area of triangle DEF is equals to half into DL in AL into BC. And this is half into DM into EF. So half into height into base, half into height into base. But half will be cancelled and I have AL into BC by DM into EF. So actually, as because AB by D is equals to AL by DM, AB by D is equals to AL by DM. If this is 1, then again I can write that AB by D is equals to BC by EF also. This is 2. Why? Because ABC is similar to DEF, and if it is so, then AB by D must be equals to BC by EF. So if it is so, then AL by DM will also be equals to BC by EF. Right? AL by DM will also be equals to, this is equal to the same thing. So that is where the trick is. And AL by DM is equals to BC by EF. So it will be BC by EF into BC by EF. So you get BC square by EF square. So you get one part, right? Now you will tell that, sir, then it should be the area of the ratio you have proved for 1. It should be equals to also AB square by this square and this square by this square also. It's just very easy, as because you know these two triangles are similar. Again, BC by EF is also equals to AB by D. So it actually becomes equals to AB square by D square also, and also AC square by DF square. That's simple. It's as simple as that. But however, this proof will not come in your exam. And in the light of the above theorem, whatever you have learned, that if there are two similar triangles, ABC and DEF are the supposed two similar triangles, and then area of triangle ABC by area of triangle DEF is actually equals to AB square by D square is equals to BC square by EF square is equals to AC square by DF square. Then what is this? This is the thing that you need to know. Corresponding side देखने से this square by this square, this square by this square, this square by this square, जैसे भी correspondingly वो हो. And I hope कि corresponding को लेके ज़्यादा बात करना नहीं होगा मेरे को. आप लोगों को पता है कि जिस तरह से भी वो corresponding है, तो उस corresponding sides का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके लिख के आप
स्क्वायर कर दो। लेकिन और एक चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए इन लाइट ऑफ द अबव थ्योरम कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, सोचो एम पी क्यू और एल आर जी, सपोज ओके, एम पी क्यू और एल आर जी टू सिमिलर ट्रायंगल्स है। अब बात ये है, लेट दिस ट्रायंगल एम पी क्यू लेट बी सिमिलर टू ट्रायंगल जी एल आर। तो एम पी क्यू जी एल आर मतलब एम जी पी एल क्यू आर, इस तरह से वो कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इसका मतलब आपका अगर रेशियो ऑफ द साइड्स मिलेगा तो वो तो आप लिख ही डालोगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बाई फ्रॉम हेयर ऑल्सो, फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट विच आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर सोच लो कि ऐसा है तो आप डायरेक्ट लिख दो एम पी स्क्वायर बाई जी एल स्क्वायर इजिकल्स टू पी क्यू स्क्वायर बाई एल आर स्क्वायर इजिकल्स टू एम क्यू स्क्वायर बाई जी आर स्क्वायर। डायरेक्ट आपको कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा अगर ये आपने सही से लिखा है। तो हमने पहले भी पढ़ा है एम पी बाई जी एल ऐसे होता है, पी क्यू बाई एल आर ऐसे होता है और एम क्यू बाई जी आर ऐसे होता है, राइट। हम लोग ऐसे 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 करते हैं, तो वो तो ठीक ही है, कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप एंगल के ऑपोजिट से ढूंढना चाहोगे तो भी ढूंढ सकते हो। जिसका ऑपोजिट में पी क्यू है तो ये इसके साथ इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट में आर एल है, तो उस तरह से भी इसका ऑपोजिट में जो है तो इसका ऑपोजिट में जो है, इसका ऑपोजिट में जो है तो इसका ऑपोजिट में जो है, तो ऐसे भी ढूंढ सकते हो और लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना चाहिए। और एक चीज़ जो हमें दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए, अगर इन्हीं ट्रायंगल्स का कोई कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है, जैसे ये ट्रायंगल बिल्कुल सीधा सीधा है, राइट, तो ए बी सी डी ई एफ, तो इसका अगर कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड लोगे आप, सोचो अगर ये एक ऑल्टीट्यूड हुआ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड होना चाहिए ये। सर आपको कैसे पता चला? वो बेस से पता चलता है। अगर बी सी को बेस बना के ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, बी सी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ई एफ है, तो ई एफ को बेस बना के कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड लिखना पड़ता है। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ये अगर है तो ये है, ये तो सिंपल सा हो गया। और ये अगर है तो ये अब उसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, और अगर ये है तो ये इसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है, ये इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है, ये इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है, क्योंकि हमें बेस से पता चलता है। इसके साथ ये बेस कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे पी क्यू के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है आर एल, तो अगर आप ऑल्टीट्यूड डालोगे ये वाला तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड होना चाहिए ये वाला, ठीक है। और अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड डालोगे ये वाला, क्योंकि ये बेस है, ठीक है, तो एम क्यू के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एम क्यू किसके ऑपोजिट में है, पी के ऑपोजिट में है, तो पी एल, एल के ऑपोजिट में आर क्यू है, आर जी है, तो ये होना चाहिए आर जी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग हुआ ना एम क्यू का। तो उस तरह से उसको बेस बना के जो, तो यहाँ पे भी देख सकते हो एम क्यू तो जी आर या आर जी होना चाहिए था। और तीसरा का कॉरस्पॉन्डिंग सही ऑल्टीट्यूड होना चाहिए ये और ये, ठीक है। जहाँ पे सब ऑल्टीट्यूड आके मीट करता है उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? ऑर्थो सेंटर। ये बाद में पता चलेगा क्यों बोलते हैं, चलो जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया। तो एनीवे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड मिल गया तो हम लोगों को, चलो उन लोगों का नाम देते हैं थोड़ा सा। एम पी, ओ सॉरी, एम ए और जी बी। तो याद रखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एम पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जी एल आर is also equals to not only mp square by, it is not only equals to mp square by gl square corresponding sides ही नहीं, but is also equals to the ratio of the corresponding altitude. That means अगर एम ए स्क्वायर लेंगे बाई हो जाएगा जी बी स्क्वायर, अगर ये वाला लेंगे पी एक्स स्क्वायर तो ये वाले के साथ ये वाला हो जाएगा
LY², हाँ ठीक है। और अगर ये वाला लेंगे QT², तो ये वाला हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा ये वाला RJ²। मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा मिल रहा है कि द रेशियो ऑफ द area of two similar triangles is not only equals to the ratio of the square of the corresponding sides, but is also equals to the ratio of the square of the corresponding altitude. So the area of two similar triangles, the area or the ratio of the area of two similar triangles is not only equal to the ratio of the corresponding sides, but is also equal to the ratio of corresponding altitudes. Okay, so that is what has been explained in this particular portion of the video, right? That is what has been explained in this particular portion. हम लोगों ने बेसिकली दो चीज़ें सीखी ऊपर के वीडियो से। क्या वो दो चीज़ें हैं? अगर दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का अगर रेशियो बनाओगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर को दैट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, और it is also the area of the similar triangles, or the ratio of the area of the similar triangles is also equal to the ratio of the squares of the corresponding altitudes, is also equal to the ratio of the squares of the corresponding altitudes. ये altitude यहाँ पे एक अगर नया altitude ड्रॉ कर दो तो ये वाला altitude, और ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा ये वाला ऑल्टीट्यूड, इसका स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर, और नया ड्रॉ करने से उसका भी स्क्वायर, ठीक है। और अगर थोड़ा पैचीदा सा ट्रायंगल दे दिया इधर उधर घुमा के, तो उसका भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे, तो एक एग्जांपल तो यहाँ पे दे के किया है, तो इसको अच्छे से देखो, फॉलो करो इसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कि कौन सा वाला हमारा कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड होता है। तो बस ये चीज़ याद रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ कि ये the ratio of the area of two similar triangle is not only equal to the ratio of the corresponding sides, but also is equal to the ratio of the corresponding altitudes, ठीक है। तो corresponding altitude के साथ ये इक्वल है, ये प्रूफ करना ज़रूरी है। प्रूफ करने से कोई हानिकारक नहीं है, इससे सम्स की समझ होती है। तो हम लोग ये वाला थ्योरम अभी थोड़ा सा देखेंगे कि इसका प्रूफ कैसा होता है, कि क्यों मैंने ऐसा बताया कि एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, देयर रेशियो इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। साइड्स के लिए क्यों होता है वो तो यहाँ पे समझा दिया था शुरू में ही, ठीक है। तो भाई साहब ये है बात कि अगर आपको प्रूफ करना है, कि क्या प्रूफ करना है, द रेशियो of the area of two similar triangle is equal to the ratio of the corresponding altitude। तो भाई साहब अगर ये आपको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे? हम लेंगे ABC वाला एक और DEF वाला एक लेंगे, और सीधा एक कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो गया AM और DK।
तो हमको प्रूफ करना क्या है कि हमको प्रूफ करना है एरिया ऑफ, मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज़ इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर बाई डी के स्क्वायर। तो ये वाला चीज़ जो हम प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो अभी बात ये है कि सबसे पहले तो बात ये है कि ए बी बाई डी ई इज़ इक्वल्स टू ए एम बाई डी के। अब सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ये इसके साथ सिमिलर प्रूव हो जाएगी आराम से, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पहले से इक्वल है, क्योंकि ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है इस वजह से। और ये वाला जो ट्रायंगल है ऑल्टीट्यूड है तो इससे ये ट्रायंगल का पार्ट हो गया। सो ट्रायंगल ए बी एम अगर सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई के साथ, ए बी एम अगर सिमिलर हो गया डी ई के साथ, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ कि नहीं? और सॉरी पहले से ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी पहले से सिमिलर था ट्रायंगल डी ई के एफ के साथ, राइट और रॉन्ग? तो ए बी सी अगर सिमिलर है डी ई एफ के साथ तो ये एंगल और ये एंगल पहले से इक्वल मिलेगा। तो जब आप ए बी एम और डी ई के को लेके काम करेंगे तो एंगल बी और एंगल ई इक्वल मिलेंगे, एंगल एम और एंगल के इक्वल मिलेंगे। तो हालांकि मैं वो लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल्स ए बी एम डी ई के देन एंगल बी इज इक्वल्स टू ई बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एंड दिस आर बोथ 90, जैसे मैंने पहले किया था, यहाँ पे किया था वही सेम प्रूफ, ठीक है? यहाँ पे जो इस तीन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ किया था। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ ये वाला चीज़ मिल जाएगा, ए बी बाई डी, ये देखो ए बी बाई डी इज इक्वल्स टू ए एम बाई डी के, ए एम बाई डी के। लेकिन इस थ्योरम के लास्ट में आपने क्या प्रूफ किया था? सेम वे में आप यहाँ पे प्रूफ कर दो या फिर डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो। प्रूफ करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि द रेशियो ऑफ द टू करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो वो इक्वल हो गया रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ, राइट और रॉन्ग? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल हो गया ना इन दोनों के साथ, क्योंकि ये थ्योरम है। तो थ्योरम को रीज़न में लिख दो बस, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ए बी और डी के जगह में एम बाई डी के बैठा दो तो मिल जाएगा एम स्क्वायर बाई डी के स्क्वायर। हो गया ना प्रूफ जो मैं बता रहा था। कि इस पार्ट को देखने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब यहाँ तक, मतलब इसके ठीक आगे वाले पार्ट तक, ठीक है, जितना भी किया हुआ है वो एक बार कॉपी में कर लीजिए तो आपको ये वाली पार्ट अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? अगर आप कॉपी में नहीं किए तो ये वाली पार्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो ये वाली पार्ट में मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the squares of altitude। अरे ये तो अभी प्रूफ किया सर आपने, ज़रूर अभी प्रूफ किया है, ये सही बात है, ठीक है? अभी प्रूफ किया है, यहीं पे प्रूफ किया है। लेकिन जिस तरह से मैंने ये प्रूफ किया है उस तरह से मैं ये भी बता सकता हूँ, नंबर 1 ऑल्टीट्यूड तो ही होगा, ऑल्टीट्यूड तो होगा ही होगा, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल्टीट्यूड तो होगा ही होगा। नंबर 2 मीडियन भी होगा। नंबर 3 एंगल बाइसेक्टर भी होगा। क्यों है ऐसा? देखो, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो अगर इसका ए बी सी नाम है, ये अगर इसका डी ई एफ नाम है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर वो दोनों सिमिलर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो पहले दिया होना चाहिए कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, और अगर ऐसा ट्रू है तो दैट इज़ इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ, ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। ये तो होगा ही। और क्या होगा? अगर आप 90 डिग्री खींच दोगे ऐसे
ऐसे, सो दैट इज़ इक्वल्स टू ऑल्सो ए एम स्क्वायर बाई डी के स्क्वायर। 90 डिग्री के लिए भी हो जाएगा, मतलब ऑल्टीट्यूड के लिए भी हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला वाला ऑल्टीट्यूड वाला होगा ए एम स्क्वायर बाई डी के स्क्वायर, ये तो होगा ही। सेकेंड मैंने बताया मीडियन, मीडियन में क्या होगा कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, सोचो दो सिमिलर ट्रायंगल्स है और इनका नाम है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप मीडियन ड्रॉ कर लो, एक ये हुआ एक मीडियन और इसका ये हुआ एक मीडियन, ठीक है, मिड पॉइंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू, मीडियन का नाम दो ए जेड पी एल, ए जेड स्क्वायर बाई पी एल स्क्वायर, जहाँ पे ए जेड एंड पी एल आर मीडियंस। मीडियंस का तो मतलब पता ही होगा कि जो पहले लास्ट पर भी सिखाया था, दो भाग को इक्वल में तोड़ दे, और कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन होना चाहिए। ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये ट्रायंगल ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग है। मैं कॉरस्पॉन्डिंग मीडियम कैसे पता चलता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड को ब्रेक करना चाहिए। अगर ट्रायंगल थोड़ा सा पेचीदा ड्रॉ किया होता, सोचो ऐसे, ठीक है, और अगर ऐसा बोलता कि पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल है, एम जेड पी ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी जेड एम, ऐसा बोल देता, तो पी इज़ इक्वल्स टू, ओह सॉरी यहाँ पे दो बार पी यूज़ किया, चलो इसको पी डैश बना देते हैं, पी डैश जेड एम, तो ये हो गया आपका पी डैश, ठीक है। तो क्यू, तो ये हो गया आपका क्यू, और यहाँ पे है जेड, तो ये हो गया आपका जेड, तो ये और ये। तो यहाँ पे अगर आपको मीडियन कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए ऑल्टीट्यूड की तरह ही, तो किस पे मीडियन बैठ रहा है, सोचो इस पे बैठा होगे, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन इस दो भाग को ब्रेक कर रहा है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन होना चाहिए, इसके आर के साथ कौन है, एम, ये होना चाहिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। और ऐसे रिजल्ट सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के लिए ट्रू होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड के लिए भी ट्रू होते हैं। और जो मैंने यहाँ पे मीडियन के लिए समझा है वो ऑल्टीट्यूड के लिए भी ट्रू है, वो मैंने पहले भी बताया है, राइट। तो मीडियन के लिए भी होगा, ठीक है। यही वाला सेम प्रूफ एंगल बाइसेक्टर के लिए भी ट्रू होगा। अगर ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, और अगर आपने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो कि ये और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर है, सॉरी, ये और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाई एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। तो यानी स्क्वायर ऑफ द साइड, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर सब। इसका मतलब क्या सीख रहे हो कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर भी होता तो भी स्क्वायर ऑफ द साइड, स्क्वायर ऑफ द सॉरी ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर तीनों होता, ठीक है। सो बेसिकली अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो ए बी सी डी ई एफ अगर उनका नाम है, एंड अगर ये ट्रायंगल ए बी सी इज़ सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ है, तो ए इज़ इक्वल्स टू डी, बी इज़ इक्वल्स टू ई एंड सी इज़ इक्वल्स टू एफ होना मांगता है। एंड ऑल्सो ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर must be equals to AC square by DF square must be equals to BC square by EF square, ये होना ही मांगता, ठीक है। and that is equals to area of triangle ABC by area of triangle DEF. And not only that, if you draw corresponding altitude, it is equals to the square of the altitudes also, corresponding altitude square by altitude square equals to corresponding median square by median square equals to corresponding angle bisector square by angle bisector square, provided they should be corresponding. Okay, so corresponding altitude वाला प्रूफ तो हम लोगों ने कर दिया। अब बाकी रहा मीडियन वाला। देखो मीडियन वाला प्रूफ में क्या है, अगर मेरा प्रीवियस क्लास का वीडियो आपने देखा है तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि आपने कुछ एक तरीके से प्रूफ किया था लास्ट क्लास में कि अगर मीडियन है
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ए बी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू जो ट्रायंगल डी ई एफ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है उन दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू द करस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो, ऑल्टीट्यूड का रेशियो और एंगल बाइसेक्टर का रेशियो। ये पहले वाले में ये किया था आपने लास्ट क्लास में। जो लोग सीरियसली क्लास कर रहे हो आप लोगों को पता होगा, आपने किया था। तो बस उसी प्रूफ को इस्तेमाल करो और ए बी बाई डी लिख दो, दैट इज़ इक्वल्स टू ए बी बाई डी, ठीक है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, हाँ, इज़ इक्वल्स टू आपका ऑलरेडी ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है आपके हाथ में। ये तो आपका ये है, मतलब थ्योरम, पहला वाला थ्योरम है, तो ये तो मिलेगा ही, या फिर बी सी स्क्वायर बाई फिस कुछ भी, ठीक है। तो अगर आपने ए बी बाई डी इक्वल्स टू ए एम बाई डी क्यू प्रूफ कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे किया था कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड के लिए, ठीक उसी तरह, लेकिन यहाँ पे एंगल से नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे ऐसे करना पड़ता है कि बी सी बाई ई एफ, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू बी एम बाई ई क्यू, क्योंकि बी सी इज़ इक्वल्स टू डबल ऑफ बी एम एंड ई एफ इज़ इक्वल्स टू डबल ऑफ ई क्यू। तो आपको बी सी बाई ई एफ इज़ इक्वल्स टू डबल ऑफ बी एम बाई डबल ऑफ ई क्यू मिल जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी एम बाई ई क्यू, तो ये वाला छोटा ट्रायंगल है, ये वाला छोटा ट्रायंगल है, ठीक है। सो एक्चुअली this by this was equals to this by this because these two triangles were similar, right? Then again this by this became equals to this by this here, so you get this by this is equals to this by this, and this angle is equals to this angle, so these two triangles are similar. So again, as because these two triangles are similar, then this by this you get equals to this by this, ठीक है। So you get it. Now area of the singular triangle is equals to this square by this square, so that will be equals to this square by this square. So if you can understand from my speech that what I have told and can do the sum, I'll really be happy. The way I have shown. और अगर आपको एंगल बाइसेक्टर का प्रूफ करना है तो भी मैं मुंह में समझा रहा हूँ, मतलब करके नहीं दिखाऊंगा। ए बी सी डी ई एफ, तो आपको मिल जाएगा ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर ये दिया हुआ है। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये सिमिलर दिया हुआ है, तो आपको इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सेम बात, अब एंगल बाइसेक्टर है तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो उसका आधा एंगल और आधा एंगल भी इक्वल होगा, और ये वाला भी इक्वल होगा, राइट। तो ये दोनों छोटा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, तो दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस कर सकते हो। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर बाई दिस स्क्वायर, तो आपको आराम से वहाँ पे ये रिप्लेस कर सकते हो, एज ईजी एज दैट।